السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 42 شہر کی سب باتوں کے ساتھ میں ہوں نا یوسف اور میں ہوں ریحان طارق۔ سب سے پہلے ایک نظر اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ کرشنگ سیزن شروع ہوتے ہی چینی پگھل گئی، اوپن مارکیٹ میں فی کلو آٹا 8 روپے قیمت کم، مارکیٹ میں ہر چیز مہنگی، چینی نے سب سے پہلے سستی ہونے کا آغاز کیا۔ حکومت گوداموں کا منہ کھولے آٹا سستا کر دیں گے، 20 کلو کا تھیلا 25 روپے کم کرنا ممکن۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کے فاؤنڈرز گروپ کے چیئرمین ڈاکٹر بلال اسلم صوفی کی پیشکش۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا، سبزی منڈی کو ماڈل منڈی بنانے کا حکم، محلہ کی سطح پر سستے بازار اور دسترخوان لگانے کے لیے بھی منصوبہ بندی کی ہدایت۔ گرام فروشی پر سیکرٹری انڈسٹری نے ڈی سی اوز کو 6 نکاتی ایس او پی بھجوا دیا۔ ادھر ایم پی ایز خواجہ عمران نذیر اور چودھری شہباز کا بادامی باغ سبزی منڈی کا دورہ۔ گلچنداوی میں ڈکیتی مزاحمت پر قتل ہونے والے تاجر جاوید کی نماز جنازہ ادا، 38 افراد کی جیبیں کٹ گئیں۔ ادھر تاجر کے قتل پر اردو بازار کے تاجروں نے احتجاجاً ٹائر جلا کر سرکلر روڈ بلاک کر دی۔ پنجاب یونیورسٹی میں طلباء ہنگامہ آرائی کیس، دہشت گردی کی دفعات ختم کرنے پر ہائی کورٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے، جبکہ 6 طلباء کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ، ریکارڈ پیش نہ کرنے پر ایس ایچ او مسلم ٹاؤن کو شوکاز۔ ادھر خصوصی عدالت نے پولیس کو 6 طلباء سے جیل میں تفتیش کی اجازت دے دی۔ کیٹرنگ فرم میزبان ایسوسی ایٹ میں 2.5 کروڑ روپے کے غبن کا کیس، فرد جرم عائد کرنے کے لیے جوڈیشل مجسٹریٹ نے گلبرگ کی رہائشی 2 خواتین کو 6 جنوری کو طلب کر لیا۔ ہائی کورٹ میں آئین کے آرٹیکل 62-63 پر عمل درآمد کیس کی سماعت، اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل معاونت کے لیے طلب، وفاق، صوبائی حکومت، نیب اور دیگر اداروں کو نوٹس۔ شہر میں ڈینگی کا خطرہ کم نہ ہو سکا، مختلف ہسپتالوں میں 24 گھنٹوں کے دوران 31 نئے مریضوں کی تصدیق۔ باغ جناح میں جدید طرز کے نئے واش رومز بنا دیے گئے، ڈی جی پی ایچ اے میاں شکیل احمد نے لارنس گارڈن میں پبلک واش رومز کا افتتاح کیا۔ بیدیاں روڈ سب ڈویژن کا لائن سپرنٹینڈنٹ میر قدیر 5 ٹرانسفارمر چوری کیس میں معطل، انکوائری شروع۔ ادھر کرپشن کے الزام میں سوئی گیس کمپنی کے ملازمین ملک ارشد اور سہیل مفتی کے خلاف ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کر دی۔ آئی جی موٹر وے ذوالفقار چیمہ کو کمانڈنٹ نیشنل پولیس اکیڈمی کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ آئی جی کی ہدایت پر پنجاب کانسٹیبلری کے 1998 ملازمین کے کانٹریکٹ میں توسیع، ناقص کارکردگی پر 662 ملازمین کے کانٹریکٹ منسوخ۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس، اپوزیشن کی امن عامہ کی خراب صورتحال پر تنقید، وزیر قانون کے بیان پر متحدہ اپوزیشن کا بائیکاٹ، اسمبلی کے باہر سیڑھیوں پر احتجاجی دھرنا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے کورین کمپنی سیمسنگ سی این ٹی کے وفد کی ملاقات، توانائی، انجینئرنگ سمیت دیگر شعبوں میں تعاون اور سرمایہ کاری پر بات چیت۔ گورنر پنجاب سے فرانس اور ہنگری کے سفیروں کی الگ الگ ملاقاتیں، ادھر ادارہ بحالی معذورہ کی تقریب میں شرکت، چودھری محمد سرور کا کہنا ہے کہ اسمبلیوں میں معذور افراد کے لیے کوٹا مختص کرنے کی مہم چلائیں گے۔ امریکی ماہر طبی تعلیم پروفیسر آرٹکن کا کالج آف فزیشن اینڈ سرجن کے ریجنل سینٹر کا دورہ، صدر سی پی ایس پی سمیت کونسل کے اراکین سے ملاقات۔ پنجاب پیرا میڈیکل الائنس کے وفد کی پرنسپل جنرل ہسپتال پروفیسر انجم حبیب باہرہ سے ملاقات، وفد کا کسی بھی احتجاج کا حصہ نہ بننے کا اعلان۔ سابق ڈی جی روٹری کلب اینتھونی رچرڈ کے والد جیم رچرڈ کی آخری رسومات سیکرڈ ہارٹ چرچ ریگل میں ادا کر دی گئیں۔ دفعہ 188 کے تحت درج مقدمے میں سیشن عدالت نے کرکٹر وہاب ریاض کی عبوری ضمانت منظور کر دی۔ لاہوریے جی بھر کے مٹھاس پائیں، جوہر ٹاؤن میں برڈ سویٹ کی نئی برانچ کا افتتاح، 3 ڈوز کے لیے تمام مصنوعات پر 25% ڈسکاؤنٹ۔ یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز میں طلباء کے لیے جابز فیئر کا انعقاد،
60 से जायद कंपनियों ने अपने स्टॉल्स लगाए। LCCI में यूथ एंटरप्रेन्योरशिप 2013 के हवाले से मीटिंग। पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मुजाहिद कामरान समेत तलबा तालिबात की शिरकत। ब्रिटिश काउंसिल के ज़ेर एहतमाम PC होटल में सोशल एक्शन प्रोजेक्ट एवॉर्ड का इनेकाद। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी पर NGOs के नुमाइंदगान में एवॉर्ड्स तकसीम। पंजाब स्टेडियम में MA ने शाइस्ता परवेज मलिक ने नवी नेशनल वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप का इफ्तिताह कर दिया। पहले रोज यंग राइजिंग और इस्लामाबाद ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। रिदा खालिद और रनीला आफ्ताब ने हसन तारिक रहीम मास्टर्स टेनिस कप के अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। अलान पोलो कप में पोलो डी सूफी और न्यू एज ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। उधर इंटर क्लब पोलो टूर्नामेंट में स्कूप और ALM सिक्योरिटी की फतह। लम्स में प्रोफेसर राजमोहन गांधी की लिखी गई किताब पंजाब फ्रॉम औरंगजेब टू माउंट बेटन की तकरीब रूनुमाई। तलबा की कसीर तादाद में शिरकत। बार बार लाहौर वापस आना गवाह है इस बात का कि इश्क हो गया है इस शहर से। और बार बार आना इस बात की गवाही है कि लाहौर से इश्क हो गया। भारतीय लेजेंड अदाकार नसीरुद्दीन शाह का लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब। हेडलाइंस आपने जानी और अब बुलेटिन में खबरों की तफसील। शहरियों के लिए खुशखबरी। शुगर मिलों की जानिब से गन्ने की क्रशिंग का आगाज होते ही शहर में चीनी की कीमत में 8 रुपए फी किलो तक कमी देखी जा रही है। अकबरी मंडी में चीनी का 100 किलो का थैला 5100 रुपए का हो गया है। शुगर मिलों की जानिब से गन्ने की क्रशिंग गुज़श्ता माह के आखिर में शुरू की गई, जिसके बाद शहर में चीनी की कीमत में 8 रुपए फी किलो की कमी वाक़ हुई है। शुगर डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक अकबरी मंडी में चीनी का 100 किलो का थैला 5100 का हो गया है, जिसके बाद शहर में चीनी की कीमत 54 से 55 रुपए फी किलो हो गई है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के फाउंडर्स ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर बिलाल असलम सूफी का कहना है कि अगर हुकूमत महकमा खुराक के गोदामों से फ्लोर मिल्स तक गंदुम फराहम करे तो आटे का 20 किलो का थैला 25 रुपए तक सस्ता हो सकता है। सिटी 42 से बात करते हुए डॉक्टर बिलाल असलम सूफी का कहना था कि इस वक्त लाहौर शहर में आटे की तलब 2900 टन रोजाना है, जबकि शहर के फ्लोर मिलों को महकमा खुराक के गोदामों में 2300 टन गंदम फराहम की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब ने काना काछा सब्जी मंडी को मॉडल मंडी बनाने और मोहल्ले की सतह पर सस्ते बाजार लगाने की हिदायत की है। वज़ीर आला मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अशिया ज़रूरिया की कीमतों का जायजा लेने के हवाले से आला सतह का इजलास हुआ। सूबाई वज़रा डॉक्टर फरुख जावेद, मोहम्मद शफीक, मुआवन खसूसी अरशद जट, अरकान असम्बली, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, मुतल्लिका सेक्रेटरीज, कमिश्नर लाहौर, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच और आला हुक्काम ने इजलास में शिरकत की। अशियाए खुरोनोश में गिरा फरोशी के सद्देबाब के लिए सेक्रेटरी इंडस्ट्री ने DCOs के लिए 6 नुकात पर मुश्तमिल SOP जारी कर दिया है। अशिया खुरोनोश में गिरा फरोशी के सद्देबाब के लिए ज़िला इंतजामिया मुतहरिक है। सेक्रेटरी इंडस्ट्री इरफान इलाही ने लाहौर समेत पंजाब के DCOs को SOP जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि शिकायत सेल के निज़ाम को मौसर किया जाए और जो शिकायत आवाम की तरफ से आ रही हैं उनको रोज़ाना की बुनियाद पर हल किया जाए। फोकल पर्सन तमाम मजिस्ट्रेट से शिकायत का फीडबैक लेगा और रोज़ाना की बुनियाद पर उसकी रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। अरकान पंजाब असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर और चौधरी शहबाज अहमद ने बादामी बाग सब्जी मंडी का दौरा किया, सब्जी और फलों की कीमतों का जायजा लिया। मुस्लिम लीग नून के अरकान सूबाई असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर और चौधरी शहबाज अहमद का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर शहर की सब्जी मंडियों के दौरे कर रहे हैं। दौरे का मकसद इस अमल को यकीनी बनाना है कि सब्जी मंडियों में होल सेल से मुनासिब कीमतों पर अशिया की खरीदारी के बाद दुकानदार परचून में ज़्यादा दाम वसूल ना करें। DCO लाहौर ने धर्मपुरा बाजार का दौरा किया और अवामी शिकायत पर तजावुज़ात खत्म करने की हिदायत की। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर लाहौर डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने अशिया ज़रूरिया की कीमतों का जायजा लेने के लिए धर्मपुरा बाजार का अचानक दौरा किया और सब्जियों की दुकानों पर जाकर कीमतों के मुतालिक मालूमात हासिल की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर कैंट, TMO और दीगर अफसरान भी उनके हमरा थे। DCO लाहौर ने बाजार में आए हुए खरीदारों से बातचीत की और उनसे सब्जियों की कीमतों के बारे में दरियाफ्त किया। डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने असिस्टेंट कमिश्नर कैंट को हिदायत की कि धर्मपुरा बाजार में मौजूद तजावुज़ात का फौरी खात्मा किया जाए।
स्ट्रीट क्राइम्स की क्या सूरत हाल है, देखेंगे बाद में। लाहौर पुलिस अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम करवाने की कोशिशों के बाद अब पेट्रोल पंप पर मापतोल और खालिस पेट्रोल की फराहमी यकीनी बनाने के लिए किस्मत आजमाई करेगी। CCPO चौधरी शफीक अहमद ने तमाम अफसरान को हुक्म दिया है कि वो दफातर से बाहर निकलें और चेक करें कि क्या पेट्रोल पंप्स पर माप तोल ठीक है, हुकूमत के मुकर्रर करदा नरखों पर पेट्रोल फ़रोख्त हो रहा है और पेट्रोल में कहीं मिलावट तो नहीं की जा रही। CCPO ने हिदायत की है कि तमाम SP सर्कल अफसरान और SHOs अपने इलाकों में कम अज़ कम 4 पेट्रोल पंप्स चेक करें। पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले, जबकि अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल जाने वाले 13 मुल्ज़िमान की जमानत की दरख्वास्तों पर रिकॉर्ड पेश न करने पर SHO मुस्लिम टाउन को शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट मॉडल टाउन कोर्ट गुलाम मुस्तफ़ा चौधरी की अदालत में हंगामा आराई, डकैती, लूटमार और टीचर्स पर तशद्दुद समेत संगीन जराइम में मुलविस तलबा के केस की समाअत हुई। मुस्लिम टाउन पुलिस ने पंजाब यूनिवर्सिटी के 6 तलबा हाफिज माजिद, अब्दुल कबीर, फारूक खान, आदम मलिक, जुबैर साही और उमर भल्ली को अदालत में पेश किया। पुलिस ने मुल्ज़िमान से तफ्तीश के लिए 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने मुल्ज़िमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर मुस्लिम टाउन पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की जानिब से केसेस का रिकॉर्ड पेश न होने पर हंगामा आराई, हवाई फायरिंग और इक़दाम कत्ल के मुकदमात में मुलविस पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा उमैर, मुआज़ अहमद, बिलाल अहमद, आबिद अली और वसीम असगर समेत 13 मुल्ज़िमान की जानिब से दायर जमानत की दरखास्तों की समाअत न हो सकी। अदालत ने बरहमी का इज़हार करते हुए SHO को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी के डिसिप्लिनरी कमेटी ने असातिज़ा पर तशद्दुद, असले का नाजायज़ इस्तेमाल और तालीमी माहौल को ख़राब करने के इल्ज़ाम में 21 तलबा को मुअत्तल कर दिया, जबकि मज़ीद वज़ाहत के लिए तलबा को नोटिस भी जारी कर दिए गए। पंजाब यूनिवर्सिटी की डिसिप्लिनरी कमेटी ने असातिज़ा पर तशद्दुद, असलहे का नाजायज़ इस्तेमाल और तालीमी माहौल को ख़राब करने के इल्ज़ाम में 21 तलबा को मुअत्तल कर दिया। डिसिप्लिनरी कमेटी ने 21 तलबा को 2 हफ्तों के लिए क्लासेस से रोक दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने पंजाब यूनिवर्सिटी में हंगामा आराई और आग लगाने के केस में पुलिस को 6 तलबा से जेल में तफ्तीश करने की इजाज़त दे दी है। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में मुस्लिम टाउन पुलिस ने दरख्वास्त दी कि 6 तलबा हाफिज वाजिद, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद खालिद भट्टी, मोहम्मद अकरम बेग, फारूक खान और अब्दुल कबीर से दहशतगर्दी केस में जेल के अंदर तफ्तीश करना है। अदालत से इस्तदा है कि उनको इजाज़त दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 6 तलबा के खिलाफ दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी के दिफात खत्म करने पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस नजमुल हसन शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब यूनिवर्सिटी में तोड़ फोड़ के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 6 तलबा के खिलाफ दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात ख़त्म करने के खिलाफ दायर अपील की समाअत हुई। पंजाब हुकूमत के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पंजाब यूनिवर्सिटी में तोड़ फोड़ और दहशत फैलाने के इल्ज़ाम में 6 तलबा के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने टाउनशिप ट्रैफिक सेक्टर को 2 हिस्सों में तकसीम करके नया ट्रैफिक सेक्टर बनाने का फैसला किया है। शहर में सबसे बड़ा ट्रैफिक सेक्टर टाउनशिप है। टाउनशिप सेक्टर रकबे के एतबार से बड़ा होने के बायस ट्रैफिक पुलिस को इंतजामी अमूर में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से सिटी ट्रैफिक पुलिस ने टाउनशिप सेक्टर को 2 हिस्सों में तकसीम करके ग्रीन टाउन ट्रैफिक सेक्टर बे बनाने का फैसला किया है। ग्रीन टाउन ट्रैफिक सेक्टर का दफ्तर थाना ग्रीन टाउन के बाहर कंटेनर में बनाया जाएगा। सिद्दीक ट्रेड सेंटर के 200 से ज़ायद ताजरों को ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिए गए। सिद्दीक ट्रेड सेंटर के सदर सैयद अजहर शाह के दरख्वास्त पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सुहेल चौधरी ने ताजिरों को ट्रैफिक असूलों से आगाही के लिए ट्रैफिक पुलिस की टीम भेजी, जिन्होंने 200 जायद ताजिरों से ज़रूरी मालूमात हासिल करने के बाद ट्रैफिक लाइसेंस जारी किए। माजूर अफराद के आलमी दिन के हवाले से इदारा बराए बहाली माजूरों में तकरीब का एहतमाम किया गया। गवर्नर पंजाब का कहना है कि वो असम्बलियों में माजूर अफराद के लिए कोटा मुख्तस करने की मुहिम चलाएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर डार। फेरोजपुर रोड पर इदारा बहाली माजूरा में होने वाली तकरीब में DG रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर, इदारे के सरबराह परवेज मसूद, परवीन मलिक समेत माजूर तलबा और तालिबात और उस्ताद ने शिरकत की। माजूर बच्चों ने खूबसूरत टैबलो पेश करके दाद वसूल की। दिखाई दी जो न दे नजर भी जो आ रहा है वही खुदा है। इदारे की तालिबा ने पुरजोश अंदाज में तकरीर करते हुए माजूर अफराद के मसाइल पेश किए
और पंजाब यूनिवर्सिटी में माजूर अफराद के लिए लिफ्ट के खराब होने की निशानदही कराई। पाकिस्तानी हुकूमत ने खुसूसी अफराद को चंद सहूलतें दी हैं, लेकिन ये अफराद ये सहूलतें उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक इनके पास मजदूरी का सर्टिफिकेट मौजूद ना हो। ये सर्टिफिकेट ज़िले बोर्ड या ज़िले हेडक्वार्टर हस्पताल में बनता है। ये अमल इतना लंबा और पेचीदा होता है कि खुसूसी अफराद इस अमल से खौफ खाते हैं और वहाँ के अमले का रवैया भी गैर जिम्मेदार होता है। गवर्नर पंजाब ने खिताब करते हुए कहा कि मजदूर अफराद के मसाइल तब तक हल नहीं होंगे जब तक उनके अपने नुमाइंदगान असम्बलियों में ना पहुँचें। जब तक वो लोग जो झुग्गियों में रहते हैं, जो फार्मर्स हैं, जो मज़दूर हैं, जो डिसेबल हैं, उनके नुमाइंदे असम्बलियों में नहीं होंगे तो वो मसाइल को नहीं समझ सकेंगे। चौधरी मोहम्मद सरवर ने मजीद कहा कि वो वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी को अहकामात जारी करेंगे कि मजदूर अफराद के लिए लगने वाली लिफ्ट मरम्मत कराई जाए। कैमरामैन इफ्तिखार अली के साथ आमिर डार, सिटी 42। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में मारूफ भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह के साथ खुसूसी नशस्त का अहतमाम किया गया। नसीरुद्दीन शाह का कहना है कि बार बार लाहौर आने से अब उन्हें लाहौर से इश्क हो गया है। लाहौर कॉलेज में नसीरुद्दीन शाह के साथ होने वाली इस नशस्त में वाइस चांसलर डॉक्टर सबिया मंसूर, मुनीसा हाशमी, डॉक्टर रिफत सकलैन, अली रिजवी, अनवर खान समेत फैकल्टी मेंबरान और तलबा ने भी शिरकत की। नसीरुद्दीन शाह के साथ होने वाली इस नशस्त में कनेट कॉलेज, बीकन हाउस, नेशनल यूनिवर्सिटी और लम्स के तलबा को भी मदऊ किया गया था। जोहर टाउन में बर्ड स्वीट की नई ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर इंतजामिया ने 3 रोज़ के लिए तमाम मसनूआत पर 25% डिस्काउंट का ऐलान किया है। लाहौर में बर्ड स्वीट एंड बेकर्स की 15वीं ब्रांच का इफ्तिताह जोहर टाउन में किया गया। इफ्तिताही तकरीब में जोनल मैनेजर सैयद नवीदुल हसन, आसिफ भट्ट, एडमिन मैनेजर आसिफ हयात, एरिया मैनेजर जैगम भट्ट, आमिर भट्ट, नवीद खान, हमजा भट्ट ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। बर्ड स्वीट ने केक, पिज़्ज़ा, स्नैक्स, सैंडविच, मिठाई, आइसक्रीम, फ्रेश सैलेड, पैटीज, जिंगर बर्गर और मिनरल वाटर भी मुतारिफ करवाया। 7 करोड़ रुपए का सेल टैक्स फ्रॉड करने पर FBI ने ताबिश स्टील मिल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अपनी स्टील मिल्स को बंद जाहिर करके इसे मुलाजिम के नाम पर चला रहा था। FBI की टीम ने कार्रवाई करते हुए ताबिश स्टील मिल्स के मालिक इफ्तिखार अहमद को गिरफ्तार किया है। FBI हुकाम के मुताबिक ताबिश स्टील मिल्स का मालिक इफ्तिखार अहमद के ज़िम्मे सेल्स टैक्स कीमत में 7 करोड़ रुपए वाजिब अता थे। कस्टम एंटी स्मगलिंग की टीम ने शेराकोट और बंद रोड पर कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए मालियत का 24,000 गज स्मगलशुदा कपड़ा और प्लास्टिक दाना कब्जे में ले लिया। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग की टीम ने कलेक्टर कस्टम्स जुनैद अकरम की इत्तला पर शेराकोट के इलाके में सुजुकी पिकअप को रोककर 24,000 गज स्मगलशुदा कपड़ा बरामद कर लिया है। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग हुक्काम के मुताबिक लाखों रुपए मालियत का स्मगलशुदा कपड़ा यासीन नामी कमीशन एजेंट आजम क्लॉथ मार्केट के करीब वाक़े गोदाम से लेकर आया था कि शेराकोट चौक में पकड़ा गया। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन के 2 मुलाजिमीन के खिलाफ सारिफ को कनेक्शन लगा कर देने की मद में मुबैना तौर पर 65,000 रुपए वसूल करने के केस की FIA ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। शेर शाह कॉलोनी के रिहायशी रियासत अली ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की कि FIA की जानिब से सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के मुलाजमीन की करप्शन की केस पर इंक्वायरी नहीं की जा रही, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने डायरेक्टर FIA को 30 रोज़ के अंदर मामला हल करने के अहकामात जारी किए। IG पंजाब खान बेग की हिदायत पर पुलिस कांस्टेबलरी के 1998 मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी, जबकि नाकिस कारकर्दगी पर 662 मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट मनसूख कर दिए गए हैं। पंजाब पुलिस कांस्टेबलरी के 2660 मुलाजमीन रिटायर्ड फौजी हैं और पंजाब कांस्टेबलरी के पुलिस कांस्टेबल शहर के मुख्तलिफ अहम मकामात पर गार्ड की ड्यूटी कर रहे हैं। IG की हिदायत पर DIG इस्टेब्लिशमेंट असलम सलीम ने 1998 मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी कर दी, जबकि नाकिस कारकर्दगी पर 662 मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट मनसूख कर दिए गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने IG मोटरवेज जुल्फ़िकार चीमा को कमांडेंट नेशनल पुलिस अकेडमी का इजाफी चार्ज दे दिया है। कमांडेंट नेशनल पुलिस अकेडमी का ओहदा काफ़ी अरसे से खाली पड़ा है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने कमांडेंट नेशनल पुलिस अकेडमी के ओहदे पर तैनाती के लिए एडिशनल IG पंजाब सरमद सईद की तैनाती के लिए समरी वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट को भिजवाई थी। ताहम वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट ने सरमद सईद की बतौर कमांडेंट नेशनल पुलिस अकेडमी तैनाती के बजाय IG मोटरवेज जुल्फ़िकार चीमा को इजाफी चार्ज दे दिया था। कैटरर्स एसोसिएशन के ज़रिए तमाम पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से कैटरर्स पर नई सेल टैक्स के नफाज के हवाले से तबादला ख्याल के लिए इजलास मुनक्किद किया गया। गुलबर्ग में मुनक्किदा इजलास में कैटरर्स एसोसिएशन के अहदेदारों, मेंबरान और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अफसरान ने शिरकत की। एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू की जानिब से कैटरर्स को नए टैक्स के हवाले से तफसीलन आगाह किया गया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक कैटरर्स की खदमात पर सेल्स टैक्स 5% की शरह से वसूल किया जाएगा, जिसका नफाज जुलाई 2012 से होगा, जबकि 25 दिसंबर 2013 तक वाजिबुल अदा होगा।
बेदिया रोड सब डिवीजन के लाइन सुपरिटेंडेंट मीर कदीर को मुअत्तल करके 5 ट्रांसफार्मर चोरी और अस्ट्री 11 का आर्जी कनेक्शन कानून के खिलाफ वर्जी करके चलाने पर इंक्वायरीज का आगाज कर दिया गया। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सर्कल 5 मुजाहिद इस्लाम बिल्लाह ने बेदिया रोड सब डिवीजन में तैनात लाइन सुपरिटेंडेंट मीर कदीर को मुअत्तल करके करप्शन इल्जामात की इंक्वायरीज का आगाज कर दिया है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर मुजाहिद इस्लाम बिल्लाह के मुताबिक लाइन सुपरिटेंडिंग मीर कदीर पर 5 ट्रांसफार्मर्स को बोर्ड करने का इल्ज़ाम है, जिसकी वजह से 2 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। डकैती मजम्मत पर कत्ल होने वाले उर्दू बाजार के ताजिर मोहम्मद जावेद की नमाज जनाजा मस्जिद या रसूलुल्लाह गुलशन रावी में अदा की गई। हज़ारों ताजिरों ने अक्षबार आंखों से नमाज जनाजा अदा की। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर खालिद परवेज़, मोहम्मद सिद्दीक शाह, औरंगज़ेब खान, शहजाद शाह, रज़ाक बब्बर समेत सूबाई दारुल हुकूमत की तमाम मार्केटों से हज़ारों ताजरों ने नमाज जनाजा में शिरकत की। नमाज जनाजा में शरीक ताजरों ने मकतूल मोहम्मद जावेद के वरसा से गहरे रंज और दुख का इजहार किया। डकैती मज़ाहमत पर कत्ल होने वाले ताजर मोहम्मद जावेद के सूब में उर्दू बाजार और उससे मुल्हिका मार्केटें बंद रहीं। गम और गुस्से से 2-4 ताजरों ने टायर जलाकर सर्कुलर रोड को घंटों बंद किए रखा। उर्दू बाजार और इससे मुल्हिका मार्केट के ताजिरों ने ताजर मोहम्मद जावेद के डकैती मजम्मत पर कत्ल के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और उर्दू बाजार में मौसर सिक्योरिटी न फराहम करने पर पुलिस और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सर्कुलर रोड को दाता दरबार से दिल्ली गेट तक बंद किए रखा, जिससे सर्कुलर रोड और इससे मुल्हिका सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। शहर में डेंगू का खतरा कम ना हो सका। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 24 घंटों के दौरान डेंगू बुखार के 31 नए मरीजों की तस्दीक की गई है। दर्जा हरारत में कमी होने के बावजूद शहर में डेंगू की यलगार कम होने को नहीं आ रही। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू बुखार के 31 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि मरीजों की तादाद में बतदरीज इजाफे का सिलसिला जारी है। गवर्नर पंजाब से फ्रांस और हंगरी के सफीरों ने अलग अलग मुलाकातें की। मुलाकात में GSP प्लस स्टेटस के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर हाउस में फ्रांस के सफीर फिलिप दिवावत से होने वाली मुलाकात में गवर्नर पंजाब ने कहा कि GSP प्लस स्टेटस मिलने से न सिर्फ पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला में इजाफा होगा, बल्कि रोजगार के लाखों मौके भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत सरमायाकारों और ताजरों को तमाम ज़रूरी सहूलतें फराहम करने का अज़्म किए हुए है। डायरेक्टर जनरल पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से बाग़ जनाह में जदीद तर्ज के पब्लिक वॉशरूम्स का इफ्तिताह कर दिया गया। मर्द, ख़वातीन और माजूर अफराद के लिए 3 पोर्शन तामीर किए गए हैं। पब्लिक वॉशरूम वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक तुर्की से दरामद डिज़ाइन के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिनमें जदीद और स्टाइलिश टॉयलेट बूथ्स बनाए गए हैं, जबकि दाखिली और खारजी के लिए कंप्यूटराइज्ड डिज़ाइन सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है। पब्लिक वॉशरूम की तामीर पर 42 लाख रुपए लागत आई है। लम्स में प्रोफेसर राज मोहन गांधी की किताब पंजाब फ्रॉम औरंगजेब टू माउंट बेटन की तकरीब रूनुमाई हुई, जिसमें तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। डिफेंस में वाक़ लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस में भारतीय प्रोफेसर राज मोहन गांधी की लिखी हुई किताब पंजाब फ्रॉम औरंगजेब टू माउंट बेटन की तकरीब रूनुमाई हुई। तकरीब में प्रोफेसर राज मोहन गांधी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हरबंस मुखिया, गुरजीत सिंह चीमा और डॉक्टर पल्लवी राघवान ने खसूसी तौर पर शिरकत की। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में सड़कों पर बढ़ते हुए हादसात की रोकथाम के लिए रोड सेफ्टी आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। मजीद बता रही हैं फिजा इमरान। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के ज़ेर-ए-तमाम नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के ताउन से मुनक्किद होने वाले सेमिनार में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर खलीकुर रहमान, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड प्रोफेसर डॉक्टर कोसर सुहेल, DIG नेशनल हाईवे एंड मोटरवेज पुलिस मिर्जा शकील अहमद समेत असातिज़ा और तलबा व तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए DIG मिर्जा शकील अहमद ने कहा कि पाकिस्तान में हर साल 12,000 से ज़ायद लोग ट्रैफिक हादसात में जान की बाजी हार जाते हैं। मोटरवे पुलिस ने ये एक मुहिम शुरू की है कि हम लोगों को ट्रैफिक के कवानीन के बारे में आगाही दें, और इस सिलसिले में हमारा जो टारगेट है वो बेसिकली यूथ है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर खलीकुर रहमान का कहना है कि सेमिनार्स के इनेकाद से जहां तुलबा में रोड सेफ्टी के कवानीन के मुतालिक आगाही पैदा होती है, वहीं सड़क पर दौरान ड्राइविंग अपनी और दूसरों की जानों की हिफाजत की जिम्मेदारी का एहसास भी पैदा होता है। ये इनकी बड़ी सीरियस एफर्ट है और बड़ी सिंसियर एफर्ट है। हम इसे अप्रिशिएट करते हैं कि बच्चों में जितना भी ट्रैफिक के लॉज के बारे में, ट्रैफिक की सेफ्टी के हवाले से जितनी भी उनमें अवेयरनेस आएगी, उतना ही हमारी सोसाइटी का जो रिस्पॉन्स है वो भी बेहतर होता चला जाएगा। प्रोफेसर डॉक्टर कोसर सुहेल का कहना है कि सड़कों पर रूनुमा होने वाले हादसात नफसियाती तौर पर लोगों को मुतासिर कर रहे हैं, जिनकी बहाली के लिए अदारों का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत है। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ फिजा इमरान, सिटी 42।
پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے زیر اہتمام ویمن فٹ بال چیمپئن شپ کا افتتاح شائستہ پرویز ملک نے کیا. اور پہلے روز کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو ینگ رائزنگ اور اسلام آباد نے اپنے اپنے میچز جیت لیے ہیں. مزید بتا رہے ہیں عامر رضا خان اس رپورٹ میں. پنجاب اسٹیڈیم میں شروع ہونے والی اس چیمپئن شپ میں 8 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، جن میں پنجاب، بلوچستان، اسلام آباد، دیا کلب، آرمی کلب، ینگ رائزنگ اور وابڈا کی ٹیمیں شامل ہیں. افتتاح کے موقع پر مسلم لیگ نون کی رکن قومی اسمبلی شائستہ پرویز ملک سے کھلاڑیوں کا تعارف کرایا گیا. شائستہ پرویز ملک نے ایونٹ کو خوش آئند قرار دیا، جبکہ چیف آرگنائزر سردار نوید کے مطابق اس ایونٹ سے سیف گیمز کے لیے کھلاڑی منتخب کیے جائیں گے. اتنا ہم فیس کر رہے ہیں ایکسٹریمزم کو، تو دس از اے ویری گڈ سافٹ امیج اینڈ میسج which these players would be carrying forward. اس ٹورنامنٹ میں سے ہم کم از کم 40 بچیوں کا ایسا انتخاب کریں جو ہمارا فیوچر پلان ہے، کیونکہ اگلے سال یہیں اور لاہور میں اکتوبر نومبر میں پاکستان فٹ بال فیڈریشن کو سیف کپ ہم ہولڈ کر رہے ہیں ویمن کا. افتتاحی روز پہلے میچ میں ینگ رائزنگ کلب نے وابڈا کو 0 کے مقابلے میں 1 گول سے شکست دی. دوسرے میچ میں اسلام آباد نے دیا کلب کو 3-0 سے ہرایا. کھلاڑیوں نے ایونٹ کے انعقاد پر خوشی کا اظہار کیا. بہت پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے پلیئرس کا بھی، ہر کوئی گیم کی طرف بہت سنسیئر ہے اور ایوری ون از ہوپنگ کہ ہم جیتیں. یہ ٹورنامنٹ ہمارے گرلس کے لیے ہمیں بہت کریج کرتا ہے تاکہ ہم لوگ اور موٹیویٹ ہو کے اور پلیئرز آ سکیں. لیکن ہم جو ہے اور ٹورنامنٹس مانگنا چاہیں گے PFF کے مالے اور ٹورنامنٹس آرگنائز کریں تاکہ ہم اور موٹیویٹ ہو سکے پلیئرز. وومن سپورٹس کی جانب توجہ دینے سے صحت مند قوم کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے. وومن فٹ بال چیمپئن شپ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. نیشنل وومن فٹ بال چیمپئن شپ 9 دسمبر تک جاری رہے گی اور امید کی جاتی ہے کہ اس میں دلچسپ مقابلے دیکھنے میں آئیں گے. کیمرامین زاہد شفیع کے ساتھ عامر رضا خان، سٹی 42. رضا خالد اور انیل آفتاب نے حسن طارق رحیم ماسٹر ٹینس کپ کے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا. ماہین آفتاب اور مہانود علی نے بہتر کھیل پیش کیا تاہم کامیاب نہ ہو سکیں. جمخانہ کلب ٹینس کورٹ میں جاری ٹورنامنٹ کے 5ویں روز لیڈیز سنگل مقابلوں کے اہم میچ میں رضا خالد نے ماہین آفتاب کے خلاف پہلے سیٹ میں بآسانی 6-1 سے کامیابی حاصل کی. تاہم دوسرے سیٹ میں ماہین آفتاب نے بھرپور مزاحمت کی اور عمدہ کھیل پیش کیا، لیکن تجربے کی بنیاد پر رضا خالد نے دوسرا سیٹ 6-4 سے جیت کر اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا. لاہور گیریزن انٹر کلب پولو ٹورنامنٹ میں اسکف اور ALM سیکیورٹی نے اپنے اپنے میچز جیت لیے. راجہ سمیع اللہ اور عثمان ملک نے ہیٹ ٹرکس کی. لاہور گیریزن اینڈ اسٹیل پولو کلب کے زیر انتظام جاری انٹر کلب پولو ٹورنامنٹ میں اسکف نے ملتان پولو کلب کو 6 کے مقابلے میں 10 گول سے شکست دی. فاتح ٹیم کی جانب سے عثمان ملک نے شاندار کھیل پیش کرتے ہوئے ہیٹ ٹرک کے ذریعے 5 گول سکور کیے، جبکہ ڈاکٹر کامران زیدی نے 4 جبکہ محمد اعجاز نے 1 گول سکور کیا. لاہور پولو کلب کے زیر انتظام اعلان پولو کپ کا آغاز ہو گیا. پولو ڈی صوفی اور نیو ایج نے اپنے میچز جیت لیے. احمد علی توانا ہیٹ ٹرک کرنے میں کامیاب رہے. 4 چکرز پر مشتمل پولو ڈی صوفی اور اعجاز کے مابین کھیلے گئے میچ میں پولو ڈی صوفی نے 5 کے مقابلے میں 7 گول سے کامیابی حاصل کی. فاتح ٹیم کی جانب سے احمد علی توانا نے ہیٹ ٹرک کی بدولت 5، جبکہ صوفی محمد فاروق اور چودھری حیات نے 1-1 سکور کر کے اپنی ٹیم کو فتح دلائی. وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف سے کوریا کی معروف کمپنی سیمسنگ CNT کے وفد کی ملاقات. توانائی، انجینئرنگ سمیت دیگر شعبوں میں تعاون اور سرمایہ کاری پر بات چیت کی گئی. ملاقات کے دوران توانائی، کنسٹرکشن، انجینئرنگ اور دیگر شعبوں میں تعاون اور سرمایہ کاری پر بات چیت ہوئی. وفد کے سربراہ مسٹر جان تائی کیم نے کمپنی کی تجارتی اور کاروباری سرگرمیوں کے حوالے سے بریفنگ دی. چیئرمین منصوبہ بندی و ترقیات، ایڈیشنل چیف سیکرٹری توانائی، سیکرٹری ہاؤسنگ DGLDA اور وائس چیئرمین پنجاب سرمایہ کاری بورڈ بھی ملاقات میں موجود تھے. پنجاب میں توانائی سمیت دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں. سابق DG روٹری کلب اینتھنی رچرڈ کے والد جیم آرچرڈ کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں. جیم آرچرڈ کی آخری رسومات سیکرڈ ہارٹ چرچ ریگل میں ادا کی گئیں. اس موقع پر روٹری کلب کے عہدیداروں اور فیکٹو گروپ کے عہدیداروں کی بڑی تعداد موجود تھی. اینتھنی رچرڈ اور ان کے اہل خانہ نے جیم رچرڈ کے زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور روٹری کلب کے لیے ان کی خدمات کو سراہا. برٹش کونسل کے زیر اہتمام سوشل ایکشن پروجیکٹ ایوارڈ کا انعقاد کیا گیا. مختلف شعبوں اور سماجی کاموں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی NGOs کے نمائندگان کو ایوارڈز دیے گئے. PC ہوٹل میں برٹش کونسل کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی تقریب تقسیم انعامات کے مہمان خصوصی امور نوجوانان کے سیکرٹری محمد خان کھچی، برٹش کونسل کے کنٹری ڈائریکٹر پیٹر اوپٹن، ایگزیکٹو ڈائریکٹر جوبیل، ڈائریکٹر ساؤتھ ایشیا شازیہ خاور اور ملک کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے NGOs کے نمائندگان کی کثیر تعداد نے شرکت کی.
यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस में तलबा को मुलाजमत की सहूलियात फराहम करने के लिए जॉब्स फेयर का इनेकाद किया गया। 60 से ज़ायद कंपनियों ने अपने स्टॉल्स लगाए। अकमल समरो की रिपोर्ट। वेटरनरी यूनिवर्सिटी में होने वाले जॉब्स फेयर में वाइस चांसलर डॉक्टर तलत नसीर पाशा ने खसूसी शिरकत की और कंपनियों की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स का मुआयना किया। जॉब्स फेयर में वेटरनरी और लाइव स्टॉक से मुतल्लिक सनतों के नुमाइंदों ने अपने स्टॉल्स लगाए। इस मौके पर इन कंपनीज में तैयार करदा मसनूआत को भी नुमाइश के लिए रखा गया। जितने हमारे ग्रेजुएट्स हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और सेक्टर में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं, नेशनल और मल्टी नेशनल, उनकी एक तो अवेयरनेस होता है। स्टॉल्स पर तलबा के बराह रास्त इंटरव्यूज लिए गए। कंपनी नुमाइंदगान की जानिब से तलबा को इंटर्नशिप और मुलाजमत के मौके की पेशकश की गई। हम लोगों की लाइफ स्टॉक में वेलफेयर के लिए काम करते हैं। पंजाब के इस वक्त हम कोई 16-17 डिस्ट्रिक्ट्स में हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक हमें अपॉर्चुनिटी मिली है। जॉब फेयर का मकसद स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करना, एक कंपनीज का प्राइवेट सेक्टर का एक लिंकेज डेवलप करना वेटरनरी यूनिवर्सिटी के साथ ही। जॉब्स फेयर का बुनियादी मकसद सनती और तालीमी इदारों के दरमियान ताउन को मजबूत करना है। जॉब्स फेयर के जरिए तलबा को मार्केट में मौजूद तमाम कंपनीज से मुतालिक आगाही भी मिलती है। कैमरामैन अदनान अली के साथ अकमल सोमरो, सिटी 42। टैलेंट स्कूल सिस्टम मॉडल टाउन में क्रिसमस डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तलबा ने टेबलोस पेश किए और गीत गाए। मॉल टाउन एस ब्लॉक में वाक़ टैलेंट स्कूल सिस्टम में LWMC के ज़रिए तमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में LWMC के असिस्टेंट मैनेजर असद अहमद और असिस्टेंट मैनेजर क्रिस्टीना पत्रिस ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर प्रिंसिपल साजिद सराज और वाइस प्रिंसिपल जमुद गुल समेत तलबा तालिबात ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। लाहौर चैम्बर के सदर इंजीनियर सुहेल लाशारी ने कहा है कि पेशा वाराना तालीमी इदारों से फारिगुल तहसील तलबा की सलाहियतों को बुरकार लाने से ही मुआशी तरक्की का अमल तेज़ होगा। LCCI के अमीन हॉल में यूथ एंटरप्रेन्योरशिप 2013 के हवाले से मीटिंग हुई, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मुजाहिद कामरान, साबिक एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर मुदस्सिर मसूद समेत तलबा और तालिबात शरीक हुए। हंगरी के सफ़ीर उस्तवान सजीबो ने कहा है कि हंगरी के ताजरों का वफ्द तिजारत और सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लेने के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगा, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत बढ़ाने में मदद मिलेगी। लाहौर चैम्बर में हंगरी के सफ़ीर उस्तवान सजीबो ने सदर इंजीनियर सुहेल लाशारी, सीनियर नायब सदर मियां तारिक मिसबान, नायब सदर काशिफ अनवर, साबिक नायब सदर सैयद नज़र, एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान मोहम्मद असलम चौधरी, मोहम्मद हारून, मियां जब्बार खालिद और एजाज़ी काउंसिल मेहताब मोहिउद्दीन से मुलाकात की। अपोजिशन ने बुध के रोज़ पंजाब असम्बली के इजलास का बाइकॉट किया, जबकि राना सनाउल्लाह की जानिब से गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करने के खिलाफ धरना दिया और नारेबाजी की। मज़ीद रिपोर्ट कर रहे हैं उमर असलम। पंजाब असम्बली का इजलास 1 घंटा 45 मिनट की ताख़ीर से स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल खान की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। इजलास में सूबाई वजीर बिलाल यासीन ने महकमे मालो कानूनी के सवालात के जवाबात दिए। इजलास के आगाज़ में अपोजिशन की जानिब से सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह के बयान के खिलाफ इजलास की कार्रवाई का बाइकॉट किया गया। अपोजिशन ने इजलास का बाइकॉट करते हुए असम्बली के बाहर धरना दिया और नारेबाजी की। अमन व अमान पर बहस के आगाज़ से कबल स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल खान ने अपोजिशन को मनाने के लिए कमेटी तश्कील दी, जो अपोजिशन को मनाकर इजलास में ले आई। अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद ने कहा, सूबे की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं, मगर इखलाकियात का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ा। वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने बताया कि सूबे में 112 अगवा के केसेस सामने आए, जबकि 90% अफराद को बाजियाब करवाया गया। 261 कब्जा केसेस आए, जिनमें से 717 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। अमन व अमान पर बहस करते हुए डॉक्टर वसीम अख्तर ने कहा कि साने पिंडी के जिम्मेदारान को सजा दी जाए। तहरीक इंसाफ के सिप्तैन खान ने कहा कि पुलिस को अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत है और IG को फ्री हैंड दिया जाए। सदीक खान की जानिब से कोरम की निशानदही की गई, जिस पर इजलास जुमेरात की सुबह 10 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। साथ ही रिपोर्टर इमरान यूनस के साथ उमर असलम, सिटी 42 पंजाब असम्बली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि आम इंतखाबात में अवामी मैंडेट हासिल करने का ढंडोरा पीटने वाली जमात 11 मई की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आने के डर से बौखलाहट का शिकार है। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान यूनस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाकी हुकूमत की जानिब से चेयरमैन नादरा तारिक मलिक के कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के इक़दाम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, जबकि दूसरी तरफ अदलिया की जानिब से चेयरमैन नादरा की दोबारा बहाली के फैसले को सराहा है। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली का कहना है कि हुकूमत को असूल पसंद अफसरान बर्दाश्त नहीं। नादरा चेयरमैन को धांधली के इलेक्शन को बचाने के लिए हटाया गया था।
अगर ये कहते हैं कि जी इलेक्शन में धांधली नहीं हुई, कोई मैनिपुलेशन नहीं हुई, किसी किस्म का कोई गलत तरीके से काम नहीं हुआ, तो फिर वो क्यों नहीं ये ऑडिट करवाने देते? अगर ये इनके पास इतनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, ये घबराते नहीं है, तो चेयरमैन नादरा का मां सिवाय इस रिपोर्ट के जो रिगिंग वाली रिपोर्ट उन्होंने पेश करनी थी, इसके अलावा चेयरमैन नादरा का कसूर क्या था? इनके ऊपर शदीद दबाव डाला गया और वो नादरा के चेयरमैन ने जब दबाव जो है वो उससे इनकार किया दबाव में आने से, तो रातों रात उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। दूसरी जानिब हुकूमती वजीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि किसी के जाने से इदारे बंद नहीं होते। हुकूमत को ये हक हासिल है कि अहम अदालती नशिस्तों पर अपनी टीम लाए, सो हुकूमत ने भी यही किया। हर वो गवर्नमेंट जो नई बरसर इक़्तिदार आती है उसको ये हक हासिल होता है कि वो अपनी टीम के जो लोगों को जो है वो कलीदी ओहदों पे लाए। तहरीक इंसाफ का मजीद कहना था कि हुकूमत अवामी जज्बात को मजरूह करने की बजाय इदारे को शफाफियत से काम करने दे और हकायक अवाम के सामने आने दे। कैमरामैन राना अयाज के हमरा इमरान यूनस, सिटी 42। FPR यूनियन की रीजनल और सेंट्रल बॉडीज़ की मंजूरी पर रीजनल टैक्स ऑफिस में जलसे का एहतमाम किया गया। FPR यूनियन के मरकजी सदर मियां अब्दुल क़य्यूम की 3 साल के लिए नामजदगी के अहकामात पर यूनियन मेंबरान का जश्न और ढोल की थाप पर भंगड़े। मौजूद दरिया रोड पर वाक़ टैक्स हाउस में NIRC के फैसले की खुशी में जश्न का एहतमाम किया गया। FPR के मुलाजमीन ने फेडरल रेवेन्यू अलायंस एम्प्लॉयज़ यूनियन की रीजनल और सेंट्रल बॉडीज़ की मंजूरी और मियां अब्दुल क़य्यूम को 3 साल के लिए यूनियन का सदर नामजद किए जाने पर ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और यूनियन अहदेदारों को फूलों के हार पहनाए। लाहौर हाई कोर्ट बाग में गाजी इल्मुद्दीन शहीद की 105वीं सालगिरह का केक काटा गया। अहाता लाहौर हाई कोर्ट बाग में गाजी इल्मुद्दीन शहीद की 105वीं सालगिरह इंतहाई सादगी से बनाई गई और केक काटा गया। तकरीब में वकला समेत मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर पंजाब बार काउंसिल के मेंबर मुश्ताक मोहल, अल्लामा हसन अहमद आवान, सैफुल हक ज़ियाई, हाफिज़ शुएबुर रहमान, कारी मोहम्मद हनीफ, शफीक रज़ा कादरी, नबीला मंजूर जाफरी, रशीद कुरैशी समेत दीगर वकला और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। लाहौर हाई कोर्ट बार के फाइनेंस सेक्रेटरी के उम्मीदवार सैयद अख्तर हुसैन शाह के एजाज़ में टी पार्टी का एहतमाम किया गया। लाहौर हाई कोर्ट बार के फरवरी को होने वाले सालाना इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले सेक्रेटरी फाइनेंस के उम्मीदवार सैयद अख्तर हुसैन शाह के एजाज़ में टी पार्टी का एहतमाम किया गया। तकरीब में मुश्ताक मोहद, इफ्तिखार अहमद मियाँ, चौधरी इश्तियाक अहमद, नसीम रियाज, इकबाल आवान, मकसूद बटर, सईद अहमद, मुश्ताक अहमद, राना अब्दुल माजिद, मलिक खालिद आवान, साबिक जस्टिस सैयद जुल्फ़िकार बुखारी और दीगर ने शिरकत की। शहर में जराइम की क्या सूरत हाल है, यह आप जान सकेंगे सिटी क्राइम में। खबर शामिल करेंगे नश्तर कॉलोनी से, जहां पर 10 साला बच्चे की चेहरा काट कर कत्ल करने के बाद लाश खाली प्लॉट में फेंक दी गई। मकतूल के वारिसा ने सौतेले बाप को बच्चे के कत्ल का मुलजिम ठहरा दिया। पुलिस के मुताबिक बच्चे की लाश खाली प्लॉट में पड़ी देखकर अहले इलाका ने पुलिस को इत्तला कर दी, जिसकी शनाख्त सुनील के नाम से हुई। बच्चे के वारिसा ने बताया कि सौतेला बाप गुज़श्ता रात सुनील को घर से ज़बरदस्ती लेकर गया और कत्ल भी उसी ने किया है। गार्डन टाउन में क्रिकेटर वहाब रियाज के खिलाफ दफ़ा 144 और शादी एक्ट के खिलाफ वर्जी करने का मुकदमा अदालती हुक्म पर खारिज कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस गार्डन टाउन के मुताबिक क्रिकेटर वहाब रियाज के खिलाफ चंद रोज कबल जिला इंतजामिया ने दफ़ा 144 और शादी एक्ट के खिलाफ वर्जी करने पर मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसे अदालत में चैलेंज कर दिया गया। वहाब रियाज के वकील की जानिब से बताया गया कि वहाब रियाज के घर में शादी की तकरीबात जारी नहीं थी, बल्कि वहाँ महफिल मिलाद हो रही थी, जिस पर अदालत ने वहाब रियाज के खिलाफ होने वाली FIR को खारिज करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। और अब सिटी सेहत। सिटी सेहत इज ब्रॉट टू यू बाय Karshi Spring Lake. For free home delivery, call 1111181. अमरीकी माहिर तिब्बी तालीम प्रोफेसर आरा टेकन ने कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स के रीजनल सेंटर का दौरा किया। सदर CPSP समेत काउंसिल के अरकान से मुलाकात की और जदीद आला तिब्बी तालीम के फ़रोग़ में बाहमी ताउन का जायज़ा लिया। इलिनॉइस यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो अमेरिका के माहिर तिब्बी तालीम प्रोफेसर आर्टिकन ने CPSP के डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल अफेयर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गौंदल के हमरा रीजनल सेंटर के मुख्तलिफ हिस्से देखे। प्रोफेसर आना ने CPSP के सदर प्रोफेसर डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी खूबसूरत नजर आने का शौक़ तो ख़वातीन को होता ही है और दुल्हन बनते वक्त ये शौक़ अपनी इंतहा पे होता है। लाहौर में हुआ ब्यूटिशियन के दरमियान दुल्हनों को संवारने का मुकाबला। इस मुकाबले का अहवाल जानते हैं मुकर्रम कलीम के ज़ुबानी।
امبیسڈر ہوٹل میں بنی سنوری دلہنوں کے درمیان مقابلہ ہوا. بیوٹیشنز نے یہ مقابلہ جیتنے کے لیے لڑکوں کو سنوارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس موقع پہ جہاں بیوٹیشنز کو اپنا ہنر دکھانے کا موقع ملا, وہیں نئی ماڈلز کو بھی پلیٹ فارم مہیا ہوا. جس بیوٹیشنز کی دلہن تیار ہو کر سب سے حسین لگی, اس کو اعزازی سند سے بھی نوازا گیا. مقابلے کے علاوہ یہاں ایکسپرٹ بیوٹیشنز کی جانب سے میک اپ کی اور خوبصورت نظر آنے کے لیے ٹپس بھی دی گئیں. اس موقع پر موسیقی کی ایک محفل بھی سجائی گئی, جس میں گلوکارہ نرمل شاہ کے علاوہ دلہنوں نے بھی اپنی آواز کا جادو جگایا. اس طرح کے ایونٹس بلا شبہ ان خواتین کے لیے خوش آئند ہیں جو سخت محنت سے بیوٹیشنز بن کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو رہی ہیں اور دوسری خواتین کو خوبصورت بنا رہی ہیں. کیمرامین شعیب صفدر کے ساتھ مکرم کلیم, سٹی 42. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا.